Welcome students. Today first topic is range. Range we have studied in last section also in detail. Let us remind a little bit about range. So if we have a number of forces, say F1 to Fn, and we are converting them into first R and G. R is resultant force and G is resultant couple. And here line of action of R is different from the axis of couple. And further we know that हमने एक थ्योरम की हुई है कि R और G को we can convert into R and K. Here line of action of R coincides with the axis of this couple K. G is converted into K here now. So this pair is called range. इतना हमने किया हुआ. So here our first result is, first theorem which we have to prove, show that a given system of forces, means हमें system दिया हुआ है, can be replaced by two forces. हमें ये prove करना है कि this system can be replaced by two forces R1 and R2 equivalent to the given system in an infinite number of ways. तो first तो हमें ये prove करना है कि we can replace this system into two forces. And second हमें प्रूव करना है कि we can do this in an infinite number of ways. And third we have proved that tetrahedron formed by two forces. यहाँ पे एक tetrahedron हमें मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगी जैसे हमारी फिगर बनेगी, is of constant volume. तो जितने भी tetrahedron here we are going to find out, we have to prove that their volume is constant. So we'll prove here three results. So our first main result is that we can replace this system into two forces. This is our main result. Now we know that the system can be replaced by R and K, that is range. We proved this in last section. So यहाँ से यहाँ तो हम आ चुके हैं. Now we'll go from here to here. Means in place of system we are considering that कि हमारे पास R और K है, रेंच है, और हम इस रेंच को दो फोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम टू फोर्सेस में रिप्लेस हो जाएगा. ओके, सो आवर मेन एम इज फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो आई एम स्टार्टिंग विद R and K. सिंस वी हैव R and K, R और K का मतलब एक ही लाइन में, दोनों एक ही लाइन में है. सो हेयर I will draw only single line along which we have R as well as K. K means कि this is axis of that couple whose moment is K. Axis भी हमने पढ़ी थी कि हम अब couple को couple में draw ना करके उसकी axis में draw कर रहे हैं. So now let this line, what is the name of this line? Coincide central axis. Let us consider this line is our z axis. जो भी ये लाइन है, हम इस सिस्टम से जो इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम के लिए जो भी लाइन है उसी को हम z axis कंसीडर कर लेते हैं. We are considering this line as z axis. And let we have somewhere here x axis. And here we have y-axis. So let us produce this x-axis backward also. ये पीछे की साइड हमें प्रोड्यूस करनी है बिकॉज हमें थोड़ा सा काम करना है यहाँ पर. So now we are going to replace R, K into R1 and R2. So where are R1 and R2? Like हमारे पास ये जो R है, ये R है, this is R, z-axis. इसको मुझे R1 इस तरफ, आपकी तरफ, और R2 बैकवर्ड साइड में कन्वर्ट करना है. बट इसी पॉइंट पर नहीं करेंगे. से दिस पॉइंट इज ओ, बट इस पॉइंट पर नहीं करेंगे बिकॉज अगर ये R को मैंने इसी पॉइंट पर R1 में रिप्लेस कर दिया तो R1 का तो मोमेंट नहीं होगा बिकॉज वी नो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू say force is F, then it will be F sin theta into shortest distance.
दिस वी स्टडीड इन टॉपिक ऑफ मोमेंट कि फोर्स का अगर मैं r को r1 में ब्रेक कर रही हूँ इसी पॉइंट पर, तो r1 का मोमेंट, यहाँ पे r1 लिख देते हैं, r1 का मोमेंट का फार्मूला ये हो जाएगा, बट क्योंकि इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, देयर विल बी मोमेंट जीरो, बट मोमेंट तो है, इस पॉइंट पे नहीं ब्रेक कर सकते, तो हमें पॉइंट से थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो यू कंसीडर दैट कि हमारे पास ये एक प्लेन है, जो ये मेरा हैंड है ये एक प्लेन है, मैं बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही हूँ यहाँ पर, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया ए, बिल्कुल इस प्लेन के पैरेलल। इस प्लेन में आपके पास ये z एक्सिस है और ये बाहर की तरफ y एक्सिस है, जो ऐसे ड्रॉ किए हैं हमने, एक्चुअल में ये ऐसे बाहर है, बोर्ड से बाहर है, और हम इस प्लेन के पैरेलल यहाँ गए हैं। यहाँ पर इस प्लेन में z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, z के पैरेलल, और इस लाइन की यहाँ लाइक दिस, देखो इसको बाहर की तरफ टर्न किया है आपकी तरफ, ये मेरे पास r1 है, तो जो बाहर r1 है उसको ड्रॉ तो बोर्ड पर ही करना पड़ेगा, तो दिस इज आवर r1 जो हमें चाहिए। हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, r1 और r2 भी यहाँ करेंगे ड्रॉ, एंड लेट दिस एंगल इज अल्फा। अब यहाँ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम यहाँ से यहाँ गए हैं एक प्लेन में, ऐसे ही हम बैकवर्ड आएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया है B, z एक्सिस का पैरेलल लाइन, और ये R है, R1 आपको बाहर मिला और R2 अंदर की साइड, इस बोर्ड में अंदर की साइड, दैट इज R2, दिस इज अवर R2, से एट एंगल बीटा। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही दो मेन पॉइंट हैं इस थ्योरम में। अगर ये दोनों आपको डायरेक्शंस विजुअलाइज हो रही हैं अच्छे से तो बाकी थ्योरम इजीली हो जाएगी। तो ये हमारा R है z एक्सिस के अलोंग, और बिल्कुल इसके यहाँ गए और ये बाहर की तरफ R1 है, वापस आ जाते हैं R पर और फिर इस तरफ आएंगे और अंदर की तरफ है R2। फिर से कह रही हूँ कि R2 बोर्ड में अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन, R1 इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम R1 और R2 के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे रिजल्ट करेंगे। तो अगर R1 ऐसे है लाइक दिस, इसका एंगल z एक्सिस के साथ कितना है, अल्फा। अगर z के साथ अल्फा है तो y के साथ होगा 90 माइनस अल्फा ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि R1 और R2 दोनों YZ प्लेन में है, ये भी YZ प्लेन में है, और जो भी लाइन YZ प्लेन में होती है वो x का परपेंडिकुलर होती है, यानी कि R1 का और R2 का दोनों का x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही किस प्लेन में है, YZ प्लेन में। R1 YZ प्लेन में है, R2 भी YZ प्लेन में है। तो सबसे पहले R1 के कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम y और z के अलोंग लेंगे, x के अलोंग नहीं लेंगे, बिकॉज x के अलोंग तो एंगल 90 डिग्री है, और जहाँ भी एंगल 90 डिग्री होता है उस लाइन के साथ कोई कंपोनेंट नहीं होता है। R1 cos 90 विल बी 0। अगर मैं आपसे पूछूं R1 का कंपोनेंट बताओ किसी भी लाइन के अलोंग जिसके साथ एंगल थीटा है, तो R1 cos थीटा। तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ R1 अलोंग z एक्सिस, एंगल इज अल्फा, सो R1 का कंपोनेंट हो जाएगा R1 cos अल्फा z के साथ। y के साथ क्या होगा, अगर z के साथ cos है तो y के साथ हो जाएगा sin, क्योंकि yz प्लेन में है, और x के साथ तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा बिकॉज अभी बताया है। R2 की बात करते हैं। R2 अंदर की तरफ है, इनसाइड, तो R2 का z के साथ कितना है, R2 cos बीटा। R2 का y के साथ नहीं, नेगेटिव y की तरफ, बिकॉज R2 अंदर की तरफ है, नेगेटिव y के साथ इसका होगा R2 साइन बीटा, लेकिन हमें तो पॉजिटिव y के साथ चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस R2 साइन बीटा, और x के साथ इसका भी 0 होगा बिकॉज 90 डिग्री x के साथ।
सो ये हमारे पास R1 और R2 के कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो क्या हम इफ वी टेक दिस डिस्टेंस एज ए तो इसके कोऑर्डिनेट a0 0 हो जाएंगे, एंड इफ वी टेक दिस डिस्टेंस एज स्मॉल b तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस b 0 0 हो जाएंगे। सो नाउ वी हैव ऑल द टर्म्स। सो लेट अस डू हियर कैलकुलेशंस। फर्स्ट we'll write resolving forces along z axis। पहले z के along कर रहे हैं बिकॉज जो हमें गिवन है वो z के along, और उसके बाद करेंगे resolving forces along y axis, this one जो ये ड्रॉ की है। सो z के along अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें, लिखा हुआ है यहाँ पे z के along ये कंपोनेंट है r1 cos अल्फा प्लस r2 cos बीटा। r1 का कंपोनेंट प्लस r2 का कंपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट का कंपोनेंट, और रिजल्टेंट क्या है r। z के along y के along r1 sin अल्फा माइनस r2 sin अल्फा माइनस r2 sin बीटा। r1 का y के लॉन्ग, r2 का y के लॉन्ग इज इक्वल टू रिजल्टेंट का y के लॉन्ग, और आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट तो कंप्लीटली z के अलॉन्ग है, सो देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलॉन्ग y एक्सिस, क्योंकि वो कंप्लीटली z के अलॉन्ग है, सो हियर विल बी 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख देते हैं इसे r1 sin अल्फा माइनस r2 sin बीटा इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हो गई कंपोनेंट्स की बात। अब हम आते हैं मोमेंट पर, बिकॉज हमें गिवन क्या है, बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ मैं, गिवन क्या है, गिवन इज आर एंड के। तो आर एंड के में फोर्स भी है और मोमेंट भी है, तो हम मोमेंट पर आते हैं। फोर्स के लिए हमने काम कर लिया। सो नेक्स्ट इज टेकिंग मोमेंट्स अबाउट z एक्सिस, फिर से पहले z के लिए करेंगे, एंड टेकिंग मोमेंट्स अबाउट y एक्सिस, और y के लिए करेंगे। तो सबसे पहले z के लिए मोमेंट। नाउ हियर टू फाइंड मोमेंट्स वी हैव टू मेथड्स। वी कैन अप्लाई फार्मूला ऑफ मोमेंट जो भी यहाँ लिखा था मैंने, फोर्स इनटू साइन ऑफ एंगल इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट here I am going to use that method which we discussed in topic of forces in 3 dimensions। हमने वहाँ पे एक मेथड किया था, वही मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट मेथड अगर हमें z एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट्स निकालने हैं r1 और r2 के, इसी तरीके से y के अलॉन्ग, तो पहले r1 के निकालते हैं। r1 के मोमेंट्स निकालने के लिए से r1 के मोमेंट्स हैं अबाउट z एक्सिस l1i प्लस m1j प्लस n1k, फर्स्ट ijk। सेकंड में इफ यू रिमेंबर हमें फोर्स का इनिशियल पॉइंट लिखना होता है, ये r1 के मोमेंट के कंपोनेंट है, तो r1 का इनिशियल पॉइंट दैट इज a0 0, और r1 के कंपोनेंट यहाँ, तो r1 की ये रहे कंपोनेंट 0, r1 sin अल्फा एंड r1 cos अल्फा। ओके, सो r1 के मोमेंट अबाउट y z एंड x यानी L1 M1 N1 निकालने के लिए हम r1 का इनिशियल पॉइंट और r1 के कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। दिस वी ऑलरेडी डिड in that topic, forces in 3 dimensions। So here you will get, if you solve, you will get L1 is equal to 0, M1 is equal to minus a r1 cos alpha, and N1 is equal to, you will get a r1 sin alpha। तो ये r1 के आ गए। इसी तरीके से हमने r2 के भी कैलकुलेट करने हैं, तो r2 के कैलकुलेट करने के लिए यहाँ मैं लिख रही हूँ L2 M2 एंड N2। फिर R2 का इनिशियल पॉइंट, R2 का इनिशियल पॉइंट क्या है माइनस B 0 0,
और R2 के कंपोनेंट्स, R2 के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये लिखे हुए हैं R2 के कंपोनेंट्स 0 माइनस R2 साइन बीटा एंड R2 कॉस बीटा। और अगर आप इसे सॉल्व करो तो हमारे पास R2 के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स के कंपोनेंट आ जाएंगे L2 will be, if you solve, L2 will be 0, M2 will be BR2 cos beta and N2 will be BR2 sin beta. So we have L1, M1, N1, L2, M2, N2. Very easily you can solve them. अगर हमने फार्मूला यूज नहीं किए तो हम ये वाला मेथड यूज करते। सो कम हियर, टेकिंग मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए मुझे लेना है N1 और N2। सो N1 इज AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा इज इक्वल टू R1 का मोमेंट, R2 का मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू उनके रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, और रिजल्टेंट का मोमेंट कितना है जेड एक्सिस के अबाउट, K। इक्वेशन नंबर 3। नाउ वाई एक्सिस यानी M1 M2, तो M1 के अबाउट R1 का है माइनस AR1 यहां से कॉस अल्फा, और M2 है प्लस BR2 कॉस बीटा। R1 का Y के अबाउट, R2 का Y के अबाउट विल बी उनके रिजल्टेंट का Y के अबाउट। और आप देख सकते हैं क्योंकि मोमेंट्स पूरा कंप्लीटली Z के अबाउट है तो Y के अबाउट कोई मोमेंट नहीं है, सो हियर विल बी 0। इक्वेशन नंबर 4। सो 1 2 3 4 दीज आर आवर मेन इक्वेशंस जो हमें यहाँ पर समझनी थी। नाउ थोड़ा कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं। First of all, magnitude of R1, R2 and their directions. For that, we have some calculations. From equation number 4, we can write R1 cos alpha, A R1 cos alpha is equal to B R2 cos beta. And we'll arrange here A and B, B in denominator, likewise A in denominator. In numerator, we'll add likewise in denominator also. And what is numerator from equation number 1? This is R. Now from first and last you will get R1 cos alpha, and from second and last we will get R2 cos beta. So here I am writing R1 cos alpha is equal to AR divided by A plus B, and R2 cos beta is equal to BR divided by A plus B. Likewise, equation number 2 can be written as R1 sin alpha is equal to R2 sin beta. We'll divide here, divide and multiply with A, and here we'll divide and multiply with B. So in numerator adding, likewise in denominator also adding. And what is numerator from equation number 3? From equation number 3, numerator is K. So from first and last we have R sin alpha, and from second and last we have R2 sin beta, and both are same here. So we have R1 sin alpha is equal to R2 sin beta is equal to K over A plus B. So now इसको रब कर देते हैं. We done with these equations. So we have R1 cos alpha and R1 sin alpha. Squaring and adding, you will get magnitude of R1, and if you divide, then you will get tangent alpha, that is alpha, direction of R1. Likewise, we have R2 cos beta and R2 sin beta. Squaring and adding, you will get magnitude of R2, and by dividing, you will get beta, that is direction of R2. So I am here leaving these calculations for you. You do yourself. So first part is now show that given system of forces can be replaced by two forces, R1 and R2. So first part is complete here. We calculated magnitude as well as direction of two forces.
Now second part, that we can do this replacement in an infinite number of ways. हमने सिस्टम को जो दो फोर्सेस में रिप्लेस किया है, हमें प्रूव करना है कि हम ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से कर सकते हैं. See here, we consider R1 at distance A and R2 at distance B. If we change these distances, तो obviously R1 और R2 भी चेंज हो जाएंगे. आपके पास ये चॉइस है कि आप R1 और R2 को कितने डिस्टेंस पर कंसीडर करना चाहते हो. तो जैसे जैसे आप डिस्टेंसेस चेंज करोगे वैसे वैसे R1 और R2 भी चेंज होते रहेंगे. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज वाला. थर्ड, टेट्राहेड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रन है कहाँ. टेट्राहेड्रन के लिए हमें क्या चाहिए? 4 पॉइंट्स, ए, बी से सी एंड से डी. R1 के 2 पॉइंट्स AC और R2 के 2 पॉइंट्स BD. ये 4 पॉइंट्स हैं, ये मिलकर टेट्राहेड्रन बनाएंगे. अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करने की ट्राई करें तो ये 3 पॉइंट्स ये होते हैं और 4th पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो टेट्राहेड्रन आ जाएगा. यहाँ पर मैं आपको टेट्राहेड्रन ट्राई करती हूँ कि दिख जाए. सो फॉर दैट विल ज्वाइन B एंड C. हम B और C को ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये जो ट्राइंगल है ABC, ये हमारी बेस ट्राइंगल हो गई. और ये D पॉइंट एक्चुअल में प्लेन में नहीं है, ये तो बाहर है और बाहर भी नहीं, इस तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है. पर चलो हम इधर मान लेते हैं. बोर्ड में नहीं है लेकिन, क्योंकि अगर बोर्ड में होगा तो टेट्राहेड्रन नहीं मिलेगा. टेट्राहेड्रन हमें तभी मिलता है जब 3 पॉइंट एक प्लेन में हो और 4th पॉइंट उस प्लेन से बाहर हो, स्पेस में. तो ये D पॉइंट जो है ये स्पेस में है, बाहर है, बोर्ड से बाहर है. दिस वन. अगर इस D पॉइंट को हम तीनों से ज्वाइन करें, A से, B से, C से. B से तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, मैं C से भी ज्वाइन कर रही हूँ. एंड लाइकवाइज आप A से भी ज्वाइन कर सकते हो. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दी. तो वी हैव टेट्राहेड्रन. नाउ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और हमें प्रूव करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वी कैन डू दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज. हमारे पास R1 R2, R1 डैश R2 डैश, R1 डबल डैश R2, बहुत सारे सेट्स आ सकते हैं. सारे सेट से जो ये टेट्राहेड्रन हमें मिलेगा, इट्स वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. वी हैव टू प्रूव दैट. सो फर्स्ट लेट अस फाइंड वॉल्यूम. तो उसके बाद देखते हैं कि वो कांस्टेंट आता है नहीं आता है. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन? टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल. हियर बेस ट्राइंगल इज ABC. ABC, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल ABC इनटू ये जो D पॉइंट है जो बाहर है, इसकी बेस ट्राइंगल से हाइट. यहाँ पर D की इस ट्राइंगल से हाइट, तो मैं वो हाइट ड्रॉ कर रही हूं, दिस वन. ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी सा लगेगा, अनकंप्लीट लगेगा, बिकॉज जब मैं प्लेन के ऊपर, ये मेरे पास प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो प्लेन के बीच में किसी पॉइंट पर आएगा ना. तो ये प्लेन ABC है और D से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये E, ये वाला पॉइंट, दिस इज E, और ये D है एंड दिस इज E. ये ABC है ये ट्राइंगल, तो दिस इज E. मैं इस पॉइंट को B से कनेक्ट कर रही हूँ, DE. So here we have this perpendicular DE. So volume of tetrahedron is 1/3 of area of triangle ABC और D की ABC से height, that is DE. Now what is area of triangle? Area of triangle is half into base into height, half into base into height. Now what is base in this triangle? और बेस तो तभी मिलेगा जब ये ट्राइंगल राइट एंगल हो. ये राइट एंगल है या नहीं है? दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल. वाई?
बिकॉज R1 इज इन YZ प्लेन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था R1 इज इन YZ प्लेन, और जो भी लाइन YZ में है वो x एक्सिस का परपेंडिकुलर है. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये नहीं लग रहा बट दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसको बेस ले लेते हैं AB को, और AC को हाइट ले लेते हैं. सो हियर वी हैव बेस AB एंड हाइट इज AC. नाउ व्हाट इज DE? See this triangle now. This is again right angle triangle. You can see. So this angle is theta. ये theta कितना है बाद में देखेंगे. फिलहाल it is theta. Now D is perpendicular and we know perpendicular is hypotenuse BD into sin theta. So DE is BD into sin theta. So it is 1/6 of AB. What is AB? A plus B. What is AC? You can see AC is R1, magnitude of R1, and BD is R2. Now what is theta? Theta मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद सारा कैलकुलेशन वर्क रह जाए. So now theta is angle between R2 and BE. See this BE is a line in triangle ABC. BE ABC ट्राइंगल में एक लाइन है. अगर कोई लाइन इस प्लेन की लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है तो प्लेन के साथ भी थीटा ही बनाएगी. फिर से सुने, अगर कोई लाइन इस डस्टर की लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है तो डस्टर के साथ भी क्या बनाएगी? थीटा. मीन्स थीटा इज हियर वी राइट लेटर्स. थीटा इज एंगल बिटवीन BD एंड BE. बट BE एक लाइन है ABC में. सो वी कैन से थीटा इज एंगल बिटवीन BD एंड ABC. बट ABC की एक साइड है R1. फिर से सुने, ABC की एक साइड है R1. सो थीटा इज एंगल बिटवीन BD एंड R1. नाउ व्हाट इज BD? R2. सो थीटा इज एंगल बिटवीन R2 एंड R1. अब देखो स्टार्टिंग में ये R था, R1 इस साइड था अल्फा एंगल के साथ, और R2 उसकी दूसरी साइड था बीटा एंगल के साथ. तो अगर कोई R1 R के साथ अल्फा बना रही है, यहां लिखते हैं R1 R के साथ अल्फा बना रही है और R R2 के साथ बीटा, तो टोटल R1 और R2 के बीच में कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा. सो हियर थीटा इज अल्फा प्लस बीटा. सो इट इज. नाउ कैलकुलेशन वर्क है, इसे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन वर्क को. सो वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ A प्लस B R1 R2 साइन A प्लस B का फार्मूला साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. 1/6 A प्लस B. एडजस्ट करते हैं R1 के साथ अल्फास को, R2 के साथ बीटास को. R1 साइन अल्फा इंटू R2 कॉस बीटा प्लस R1 कॉस बीटा इंटू R2 साइन बीटा. 1/6 A plus B. Now what is R1 sin alpha from here? R1 sin alpha is K A plus B. Likewise R2 cos beta is B R A plus B. R1 cos beta is R1 cos alpha था यहाँ. R1 cos alpha is A R A plus B and this is K over A plus B. So we have some terms common in numerator. Common is K and R. In denominator common is A plus B का whole square and inside we have B plus A or you can say A plus B. A plus B cancel out, so it is 1/6 KR. So volume is 1/6 KR. Now see this is constant. Why? Because R and K given in the statement. ये स्टेटमेंट में हमें सिस्टम गिवन था F1 से लेके Fn तक, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर लिया था कि इस सिस्टम को हमने R और K में कन्वर्ट कर दिया है अलोंग दिस लाइन. तो इट मीन्स कि R और K गिवन थे. हमें वेरी क्या हो रहे थे? A, B, अल्फा, बीटा, R1, R2 ये 6 टर्म्स हमने कैलकुलेट की हैं और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से आ सकती है. दे आर वेरी but R and K both are constant, and since volume is here in terms of R and K, so we can say volume is constant.
सो आपको चाहे जितने भी सेट यहाँ पर फोर्सेस के मिले, जितने भी टेट्राहेड्रन आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, सबका वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा. सो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड. थैंक यू.